Good morning. My name is Pooja Jain and I belongs to Swami Keshwanand Institute of Technology Management in Gramothan, Jaipur. Our today's topic is special type of concrete. First of all, you have to know what is concrete. What is concrete? Concrete is a mix of cement, fine aggregate, coarse aggregate, water and some amount of admixtures. So here we have introduced the term special types. Now special types of concrete. What is special type of concrete? Normally you have produced in your laboratories concrete lab M20 M25 right now. So what term this special types define? Normally we use the concrete in the in some type of environmental conditions. All the concretes are depends, the requirement of these special types depends on the environmental conditions. What are these environmental conditions? Environmental conditions like the hot arid regions, the cold arid regions, or underwater constructions, etc. So the special type of concretes basically depends on the conditions in which it is to be under construct. In your RTU syllabus, there are three types of special type of concrete mentioned, and that first one is sulfate resisting concrete. What is sulfate resisting concrete? बेसिकली ऐसी कंक्रीट जो सल्फेट अटैक को रेजिस्ट करे. हु resist the sulfate attack? What is sulfate resisting cement? Sulfate resisting cement is a type of Portland cement in which the amount of tricalcium aluminate is restricted to lower than 5%, and the sum of twice of tricalcium aluminate and tetracalcium aluminate ferrite is lower than 25%, which reduces the formation of sulfate salts. Okay, you know the term what is sulfate resisting cement? Basically in its C3A compound is restricted up to the limit of 5%. So these type of concrete, sulfate resisting concrete, provides the restrictions of sulfate attacks. The reduction of sulfate salts lower the possibility of sulfate attack on the concrete. By using these type of sulfate resisting concrete, we control we control the sulfate attack on the concrete. Because of this sulfate attack, it is the very most deterioration property of our concrete. The concrete deteriorate by this sulfate attack. It is known that the sulfate attack on concrete can lead to excessive expansion, cracking, delamination, loss of strength and loss of the mass. This can be associated with the chemical reactions between hardened cement paste and sulfate ions, leading to formation of new compounds and alteration of existing phases. Characteristic of sulfate resisting cement. This cement provides maximum resistance to chloride ions, minimizing the risk of corrosion of reinforced steel. It also provides high level of concrete performance and structural integrity in highly aggressive sulfate and acidic environments. It also has increased workability and pumpability. This cement has significantly improved later age concrete strength. क्यों? बिकॉज सल्फेट अटैक रिड्यूस हो जाएगा तो कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टीज इंक्रीज होगी. ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी बेसिकली सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट से उसकी पोरोसिटी रिड्यूस होती है. जब पोरोसिटी रिड्यूस होती है तो
जो कंक्रीट है उसके अंदर जो एक्सटर्नल मटेरियल्स हैं, एक्सटर्नल कंपाउंड्स हैं, वो अंदर एंट्री रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, उनकी अंदर एंट्रीज रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है. दैट्स व्हाई वी हैव these types of some basically workability and pumpability इंक्रीज होती है, ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो जाती है. ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो हमें कंक्रीट बेसिकली गुड टाइप ऑफ कंक्रीट हमें प्रोवाइड होती है, उसकी लाइफ साइकिल इंक्रीज हो जाती है बेसिकली, और ये हमें स्ट्रेंथ बेसिक अच्छी देता है. सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, यूज़ ऑफ सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट इज, जहाँ जहाँ पे सल्फेट अटैक बहुत ज़्यादा होगा. सल्फेट्स आयंस कहाँ मिलते हैं, बेसिकली हमें जो सल्फेट आयंस मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा इन दी एक्सेस अमाउंट जो अवेलेबल है वो है ना इन दी सॉइल. तो जहाँ जहाँ पे हमारा जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो सॉइल के जितना क्लोज है वहाँ हमें सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट की रिक्वायरमेंट है. तो जहाँ जहाँ पे कहाँ पर होगा, दैट्स वाई फाउंडेशन, piling works, construction in contact with soils or groundwater having more than 0.2% or 0.3% ग्राम पर लीटर सल्फेट सॉल्ट्स रिस्पेक्टिवली. जहाँ पर इस लिमिट से ज़्यादा हमें मिल रहा है सल्फेट प्रेजेंट है इन्वायरमेंट के अंदर, इन्वायरमेंट वो सॉइल के अंडर में है, एज अ सॉइल कांटेक्ट में आ रहा है, वाटर कांटेक्ट में आ रहा है, जहाँ पर इस रेंज में हमारे पास सल्फेट आयंस है वहाँ पर हम कहाँ सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट्स का यूज़ करते हैं. Concrete surfaces subject to alternate wetting and drying such as bridge piers, concrete surface in tidal zones, apron, etc. सम इफ्लेंट ट्रीटमेंट प्लांट्स ईटीपी, वहाँ भी हम सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट्स का यूज़ करते हैं. बेसिकली ये है कि जहाँ जहाँ पे हमारे पास सल्फेट आयंस अवेलेबल होंगे तो उनका सल्फेट अटैक रोकने के लिए कि वो जो सल्फेट आयंस हैं वो हमारे जो भी जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो हमारा कंस्ट्रक्ट मटेरियल है, जो हमारी कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग है, एनीथिंग एल्स, वहाँ पर वो अपना इफ़ेक्ट ना दिखाएं, सल्फेट उस पार्ट से कॉम्बिनेशन ना करके, और जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बनाते हैं जिसके कारण से उसमें क्रैक्स जनरेट होते हैं वो ना हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट्स यूज़ करते हैं. चिमनी, कूलिंग टावर्स, कोस्टल प्रोटेक्टिव वर्क सच एज सी वॉल्स, ब्रेक वाटर्स, टेट्रापॉड्स एक्सेट्रा. बिल्डिंग, जो ऐसी बिल्डिंग्स जो नियर सी कोस्ट हैं, केमिकल एडमिक्सचर्स, वाटर स्टोरेज, some drainage works, so basically suitable for underground works where sulfate is present in the soils and water. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेजिस्टिंग सीमेंट, तो बेसिकली एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ही. एडवांटेजेस है कि सल्फेट अटैक को रिड्यूस कर देती है, और सेकंड थिंग इज वेरी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बाय इकोनॉमिक कंक्रीट मिक्स डिजाइन. Very low heat of hydration helps to avoid shrinkage cracks, improve life and durability of structures under aggressive conditions, improve corrosion resistance of steel by preventing sulfate attack. Sulfate resisting cement is not suitable where there is a danger of chloride attack. This will cause corrosion of rebars. अगर वहाँ पर chloride attack बहुत ज़्यादा है तो हम वहाँ पर sulfate resisting cements को use नहीं करते हैं. बेसिकली क्यूरिंग का बहुत ध्यान रखना है. क्यूरिंग प्रोसेस शुड बी डन प्रॉपरली विद ग्रेट केयर ऑफ मिनिमम 8 to 10 days. It is not prescribed to use it in marine construction. There is some reason because there is a sulfate attack, chloride ions, or many things are there. So we do not use sulfate resisting cements at in the marine constructions. Now underwater concreting. Underwater concreting. What is underwater concreting? What do you understand by underwater concreting? Underwater concreting is basically when we construct the project, when we where we construct the project under the water, yeah, in the sea, in some rivers, some piers and wall casings, cofferdams, these etc. are underwater constructions. Then the specially designed process to enhance constructability and performance in water. बेसिकली अगर हमें अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना है तो दैट इज़ वहाँ पर हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग की. इट कैन बी करेक्टराइज बाय द कॉन्क्रीट रेजिस्टेंस टू वॉश आउट, सेग्रीगेशन, bleeding, and is affected by the mixed proportioning, aggregate shape, gradations, admixtures, vibrations, and placement conditions.
For these we have to main 3 points, we have to characteristics of these 3 points, basically flowability, सेल्फ कंसोलिडेशन एंड कोहेजन. तो बेसिकली जो कॉन्क्रीटिंग के ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं कि उसकी फ्लोएबिलिटी होनी चाहिए बिकॉज इट इज़ अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन. तो विद द हेल्प ऑफ दी पम्प्स एंड ऑल वी हैव टू प्रोवाइड देयर concrete, so flowability is there, self consolidation property होनी चाहिए and the cohesion भी होना चाहिए. The behavior of fresh concrete depends on the 2 parameters we know, that is the yield stress and plastic viscosity. तो अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग में हमें ये दो जो पॉइंट्स हैं, यील्ड स्ट्रेस और प्लास्टिक विस्कोसिटी, इन दो फिनोमिनाज के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना होता है कि उसकी यील्ड स्ट्रेस और प्लास्टिक विस्कोसिटीज़ के ऊपर ही ये सब चीज़ डिपेंड करता है कि बेसिकली हमने कंक्रीट को पोर किया और कंक्रीट ड्यू टू इट्स विस्कोसिटी, इट्स यील्ड स्ट्रेस, वो फ्लो नहीं करेगी. तो हमें इसकी विस्कोसिटी को भी इंक्रीज़ करना होगा. बेसिकली उसकी वो कंक्रीट जो है हमारा पानी के साथ फ्लो नहीं हो जाना चाहिए बिकॉज इट इज़ वेट कंक्रीट, इट इज़ नॉट हार्ड कंक्रीट व्हेन वी पोर this concrete in underwater. So the concrete do not wash out. If it is wash out तो क्या होगा, बेसिकली वाटर सीमेंट रेशो चेंज हो जाएगा. हमें जो स्ट्रेंथ प्रॉपर चाहिए वो हमें स्ट्रेंथ जो हमारी अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेंथ जो हमने टारगेट स्ट्रेंथ डिफ़ाइन किया है उस मिक्स के लिए वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे. तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है. Concrete placed under water is susceptible to cement washout, latence and segregation. तो हमें ये जो 3 चीज़ें हैं, सीमेंट वॉशआउट, लेटेंस एंड सेग्रीगेशंस, इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में. तो जो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन है, द अंडर वाटर कंक्रीटिंग टेक्निक डिज़ाइन मोस्टली टू प्रिवेंट सीमेंट वॉशआउट. बेसिकली हमें ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सीमेंट का वॉशआउट नहीं होना चाहिए अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि बिकॉज सीमेंट इज़ द मेन बाइंडिंग मटेरियल for that concrete. It's provide binding. There are lots of method to carry out underwater concreting. Tremie method, pumping method, hydro wall method, pneumatic wall method, skip method, tilting pallet barrage method, pre-placed aggregate concrete, toggle bags method, bagged concrete method. There are lots of method for doing underwater construction. In these, Tremie method is mostly used in the underwater construction purpose. The Tremie method, in this figure, it is prescribed the Tremie method. Tremie is a watertight pipes. It is defined. There is a Tremie pipe. It is properly connected. There is a smooth bore pipe with quick release watertight joints. और बेसिकली जब हम ये ट्रेमी पाइप इसमें ये जो ट्रेमी पाइप है ये एयर एंड बेसिकली वाटर से अलग होना चाहिए. इसमें से हमें सबसे पहले एयर एंड वाटर एक्सक्लूड करना चाहिए. टोटल कंक्रीट ही इसके अंदर होना चाहिए जब हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं. जनरली जो इसका डायमीटर है, जनरली डायमीटर इज़ 250 mm, फनल शेप्ड एट इट्स अपर एंड एंड लूज प्लग एट द बॉटम. जो फनल शेप्स आपको ऊपर दिख रहा है, दिस इज प्रोवाइडेड फॉर सप्लाइड अ पंप, supplied a concrete. It is supported on a working platform above water level. So Tremie method is most important method, or there is a lots of method. These are the pumping method. In the pumping method, we pump the concrete with the help of some hydraulic jacks and all. Pump the concrete in the underwater. In the hydro valve method, there is a particular valve. By this we do this pneumatic valve method. We use the pneumatic valve in this skip method. There's a tilting pallet barrage method, pre-placed aggregate concrete. And the pre-placed aggregate concrete in this, firstly we provide the only the aggregate in the particular जहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन चाहिए वहाँ पे हम टोटली एग्रीगेट प्रोवाइड कर देते हैं. और उसमें एक फिनोमेना रखते हैं, पाइप्स रखते हैं, ताकि बॉटम से हम उसमें
कंक्रीट जो मिक्स है हमारा सीमेंट मिक्स है वो हम उसमें डाल सकें, तो हम वहाँ पर एक पहले सिर्फ एग्रीगेट्स ही डाल देते हैं और देन हम उसमें कंक्रीट पोर करते हैं नीचे से, और नीचे से पोर करते हैं ताकि वो अपर लेवल तक आ जाए, और इस तरह से हम इसमें प्री प्लेस एग्रीगेट कंक्रीट मेथड में हम अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करते हैं। और टॉगल बैग्स मेथड में बेसिकली टॉगल बैग्स मेथड ये होते हैं कि एक बैग के अंदर हम रॉ मटेरियल डाल के उसको मिक्स अच्छे से बन के उसमें रहता है, देन फिर हम उसमें पानी रहता है तो वो अपना बेसिकली क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ गेन कर लेता है आफ्टर सम टाइम। तो दीज आर दी अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन, और देयर इज़ अ लॉट ऑफ इन दिस वी हैव टू हमें बहुत सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में बेसिकली है कि हमारे फ्लोएबिलिटी होनी चाहिए, फ्लोएबिलिटी होनी चाहिए, उसके साथ में हमें सेल्फ कंसोलिडेशन, बिकॉज जब हम अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो अंडर वाटर ड्यूरिंग दिस अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन जो उसके ऊपर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है, बिकॉज अगर हम अंडर सी वर्क कर रहे हैं तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ टर्न ऑफ प्रेशर ड्यू टू दिस हाइड्रोस्टैटिक, ड्यू टू दिस वाटर up above that level. And if we work under the river or there is a lots of horizontal and vertical pressures, तो हमें उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमें अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ द पंपेबल कंक्रीट। A pumpable concrete which can be pushed under pressure through a pipeline system. तो जो विद द हेल्प ऑफ दीज पाइपलाइन सिस्टम अगर हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो विद द पाइपलाइन सिस्टम अगर हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं तो दैट इज़ द पंपेबल कंक्रीट। पंपेबल कंक्रीट बेसिकली विद द हेल्प ऑफ दीज पाइपलाइन सिस्टम हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे पहुंचाते हैं। तो इसमें जो हमें जो हमें मेन मोस्ट फैक्टर्स हैं जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं पंपेबिलिटी को, तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज योर स्लम्प। इफ़ वी हैव दैट पर्टिकुलर स्लम्प, तब हमारी जो कंक्रीट है वो इन दी फ्लोएबल कंडीशन में होगी। तो हमारा जो पंपेबल कंक्रीट्स होती हैं वो फ्लोएबल कंडीशंस में ही होनी चाहिए, वरना वो पाइप्स के अंदर स्ट्रक्ट हो जाएंगे, और पाइप्स के अंदर स्ट्रक्ट हो जाएंगे तो एक्स्ट्रा प्रेशर्स लगेगा, एक्स्ट्रा प्रेशर्स होंगे तो हमारा प्रॉपर कंक्रीटिंग नहीं हो पाएगी, वहाँ पे सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इफ़ देयर इज़ सम अगर वो वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स हो गई, तो फिर हमें प्रॉपर कंक्रीट मिक्स प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। इफेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट ऑन दी पंपेबिलिटी। बेसिकली साइज ऑफ एग्रीगेट, जो साइज ऑफ एग्रीगेट है वो हमारा जो होज साइज है, होज साइज से 3 to 4 टाइम्स स्मॉल होना चाहिए जो हमारा साइज ऑफ एग्रीगेट है। तो हमें इसी अकॉर्डिंग, इस टाइप के अकॉर्डिंग हमें चूज़ करना चाहिए कि हमारा साइज़ ऑफ एग्रीगेट क्या हो। ये साइज़ ऑफ एग्रीगेट, और बेसिकली अकॉर्डिंग टू दैट साइज़ ऑफ एग्रीगेट हमें अपने होज जो साइज़ है उसको चूज़ करना चाहिए। होज साइजेस विद द हेल्प ऑफ दिस वी जो भी हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं, तो जो पंप से है, जो पाइप्स के थ्रू जा रहा है, तो द होज साइज, उसका भी साइज़ क्या होना चाहिए, 3 to 4 टाइम्स ग्रेटर देन आवर साइज ऑफ एग्रीगेट, ताकि जो मिक्स है वो प्रॉपर रहे, यूनिफॉर्म मिक्स रहे, और यूनिफॉर्म मिक्स रहे, देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन। तो ये हमें जो बेसिक है, जो हमारी फ्रेश प्रॉपर्टीज़ की कंक्रीट है वो हमारी पूरी फुलफिल होनी चाहिए, यूनिफॉर्म मिक्स रहना चाहिए। दूसरा है जो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ द शेप एंड सरफेस टेक्सचर। तो जो शेप है और सरफेस टेक्सचर है उसके ऊपर भी हमारी जो ये पंपेबिलिटी है वो डिपेंड करती है, वो काफ़ी इफेक्ट करती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एग्रीगेट। उसमें शेप एंड सरफेस, शेप है ज़्यादा कोनिकल साइज नहीं होना चाहिए, जो हमें यूनिफॉर्म मिक्स के लिए, जो हमारा प्रॉपर मिक्स के लिए हमें रिक्वायर्ड होती हैं, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स, वो सारी की सारी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें यहाँ भी कंसीडर करनी है। शेप एंड सरफेस टेक्सचर और ग्रेडेशन ऑफ पार्टिकल साइज, प्रॉपरली ग्रेडेड होना चाहिए पार्टिकल साइज, तभी हमारा यूनिफॉर्म मिक्स बनेगा, और एट दी एंड हमें पूरा प्रॉपर कंक्रीट मिलेगी। वहाँ पर पोरोसिटी रिड्यूस हो जाएगी इफ़ द पार्टिकल साइजेस आर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड पोरोसिटी रिड्यूस होंगी तभी हमें प्रॉपर पंपेबल कंक्रीट मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वाटर और जो हमारा मिक्स है वो
सेग्रीगेट हो जाए, वहाँ पे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, तो उससे क्या होगा, वाटर सीमेंट रेशो चेंज हो जाएगा, वाटर सीमेंट रेशो चेंज हो जाएगा, और बेसिक जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो पोरोसिटी की क्रिएट हो जाएगी। पोरोसिटी की प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो हमें प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगा। तो पंपेबल कॉन्क्रीट्स में है, जो पंपेबल कॉन्क्रीट्स हैं उसकी जो हमें यूजेस हैं, बेसिकली यूजेस है जब हम मास कॉन्क्रीटिंग करते हैं, इन दी मास कॉन्क्रीटिंग वी हैव टू use this pumpable concrete method. मास कंक्रीट इज व्हाट इज मास कंक्रीट? मास कंक्रीट जब हम एक लार्ज क्वांटिटी में कंस्ट्रक्शन करते हैं विद इन अ टाइम, विद इन अ पर्टिकुलर, विद इन अ कंटिन्यूस टाइम, जब हम वो कंटिन्यूटी फॉलो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ मास कंक्रीटिंग। तो मास कंक्रीटिंग हमें जो रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ पंपेबल कंक्रीट। और अभी राइट नाउ जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे चल रहा है वो बेसिकली ओवरऑल सब जगह मोस्टली पंपेबल कंक्रीट यूज़ करते हैं कि हमें 13 स्टोरीज 14 स्टोरीज और बेसिकली जयपुर में 3 स्टोरीज 4 स्टोरीज हाइट पे अगर हमें कंक्रीटिंग करनी है, बेसिकली स्लैब्स कास्ट करनी है, तो हम नॉर्मली कास्टिंग नीचे करते हैं, और कास्टिंग्स विद द हेल्प ऑफ दीज पम्प्स वी प्रोवाइड दैट कंक्रीटिंग ऑन दी roofs, and we do that concreting, so with the help of that pumps we provide. So it is the normal procedure we used right now in our city Jaipur. So pumpable concrete is very important, but in this we have to mainly uh, uh, consider this, that slump is very useful, and by how we get this particular slump, required slump. So with the help of some admixtures such as air entering agents, fly ash, and water reducing agents are used for producing these type of concrete. Air entering agents, with the help of these air entering agents we provide, what we should provide in this type of admixtures, air entering agents, air entering जो air bubbles वहाँ पे हो जाती है, तो उससे हमें प्रॉपर स्लम्प मिलता है, वाटर वर्केबिलिटी इंक्रीज होती है, वर्केबिलिटी इंक्रीज होती है, तो हम जो विद दी मतलब बहुत ईज रहता है इन दी पंपेबल कॉन्क्रीट। विद द हेल्प ऑफ दीज पाइप, विद द हेल्प ऑफ दीज पम्प्स वी easily provide our concrete to up to the required point. फ्लाई ऐश जो है वो क्या होता है, स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं, तो ये उसकी बेसिकली जो अगेन वर्केबिलिटी को इंक्रीज कर देती है। और देन वाटर रिड्यूसिंग एजेंट, वाई वी यूज़ वाटर रिड्यूसिंग एजेंट? विद द हेल्प ऑफ दिस वाटर रिड्यूसिंग एजेंट हम क्या करते हैं, वाटर रिड्यूस करते हैं। वाटर रिड्यूस कर रहे हैं तो क्या होगा, बेसिकली हमें स्लम्प इंक्रीज मिल जाएगा, स्लम्प प्रोवाइड हो जाएगा इन लेस अमाउंट ऑफ वाटर। तो लेस अमाउंट ऑफ वाटर में जब हमें स्लम्प अच्छा मिल रहा है तो उससे बेसिकली क्या मिलेगा हमें कि सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम अवॉइड हो जाएगी, ब्लीडिंग नहीं होगी, वाटर कम रहेगा, तो उससे क्या है कि हमारे पास पोरोसिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, जो आफ्टर जो एनवायरनमेंट में ड्यू टू दी हीट ऑफ दी एनवायरनमेंट जो हमारा एवोपरेट हो जाता है वाटर, वो जो वाटर है, फ्री वाटर है, वो वाटर रिड्यूस हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस वाटर रिड्यूसिंग एजेंट। तो वाटर रिड्यूस हो जाएगा, स्लम्प हमें रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो बेसिकली ये सब चीज़ें हमें पंपेबल कंक्रीट में भी ध्यान रखनी है। हर एक जो हार्डन प्रॉपर्टीज़ कंक्रीट है और फ्रेश प्रॉपर्टीज़ कंक्रीट है, वो सब प्रॉपर्टीज़ हमें इन तीनों मेथड्स में, दी सल्फेट रेजिस्टिंग कंक्रीट, इन अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन एंड दी पंपेबल कंक्रीट, ये हमें तीनों कंक्रीट्स में हमें फ्रेश प्रॉपर्टीज़ की, हार्डन प्रॉपर्टीज़, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमें ध्यान रखना है और अकॉर्डिंग टू दैट हमें अपने क्वेश्चंस का आंसर देना है। ओके इसमें मैंने इस इन दिस ऑडियो आई विल डिक्टेट यू दीज थ्री टाइप ऑफ कंक्रीट्स। इफ़ यू हैव any type of problems, please feel free to contact me. Thank you.